آج کا ہمارا بڑا دلچسپ ویلاگ ہے، اور یہ جو آج کا ویلاگ ہے یہ بڑا یادگار ویلاگ بھی ہوگا۔ آج کا جو موضوع ہے، ہم تو سوال پوچھیں گے کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ انڈیا کے وزیر دفاع جو کہ مینٹلی طور پہ انفٹ نظر آتے ہیں، دماغی مریض نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے موجودہ سیاستدان جو کہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے حوالے سے، اور غزہ کے مسلمانوں کی تکلیفوں کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر خاص کر کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اور جو چوری چکاری ڈکیٹی اور یہ معاملات ہیں اس کے حوالے سے، اور سب سے اہم بات کہ جو موجودہ حکومت ہے یا ان کے اتحادی ہیں، الیکشن سے پہلے جو انہوں نے دعوے کیے اس کے حوالے سے، اور مہنگائی نہ کنٹرول اور نہ تھمنے والا جو اس کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے ویلاگ کو بھی پہلے کے پروگراموں کی طرح توجہ سے سنیں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم انڈیا کے وہ نفسیاتی اور وہ مینٹلی انفٹ وزیر دفاع کی طرف، جو کہ برملا اب یہ اقرار کر چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور انڈیا نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے۔ یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، اس نے کینیڈا میں دہشت گردی کی، اور یہ اس کا جو ہے وتیرہ ہے، یہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اس کبھی بھی پرسکون یہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ مینٹلی طور پر یہ جو حکمران ہیں انڈیا کے، مینٹلی طور پر بیسک یہ انفٹ حکمران ہیں، مینٹلی طور پر یہ پریشان حال لوگ ہیں۔ یہ ان کے پاس جب وہاں سیاست میں کچھ اور کرنے کے لیے، اپنی عوام کو کوئی پروگریس اچھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ صرف پاکستان کو ہوا بناتے ہیں۔ پاکستان ان کے لیے ایک ڈرون خواب کی طرح ہے، وہاں کی عوام کو ڈراتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے، اور یہ ان کی بہادری جو ہے وہ ان کی فلموں تک محدود ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے جو وزیر دفاع ہیں وہ انڈین مووییں اس بہت شوق سے دیکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انڈینز جو ہیں وہ اپنی عوام کو، جو وہاں کے حکمران ہیں، اپنی عوام کو بیسک اصل حقائق سے اور اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے وہاں موویز تیار کرتے ہیں، اور ان کے اندر بہت کچھ دکھاتے ہیں جس سے عوام مطمئن ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس حقیقت کچھ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب در اندازی کی کوشش کی انڈیا نے تو ان کا پائلٹ، ان کے جتنے بھی طیارے تھے وہ مار گرائے گئے، ان کے پائلٹ کو بھی پاکستان نے اریسٹ کر لیا، پھر ہم نے خیرات کے طور پہ ان کو واپس کیا۔ وہ کوئی ان کی بہادری نہیں، وہ ہم نے ان کو واپس کر دیا کہ دیکھیں آپ کے اوقات اتنی ہے، یہ لیں ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی وہ موویز بناتے ہیں، اپنی بہادری کے چرچے کرتے ہیں، اور جھوٹ پر مبنی ان کے سارے خیالات اور ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب الیکشن وہاں آتے ہیں تو پاکستان کے اگینسٹ بیان بازی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں جو ان کے حالات ہیں عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے انڈینز کے پاس وہ معاملات نہیں ہیں، جتنی وہاں کی آبادی ہے اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کے بہت سارے اندرونی پیچیدگیاں ہیں وہاں ملک کے اندر، تحریکیں ان کے ملک میں چل رہی ہیں آزادی کی، انہوں نے زبردستی کشمیر کے مسلمانوں کو دبا رکھا ہے، وہاں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور اس کے بعد کئی بار چین سے منہ کی کھانی پڑی ہے ان کو، لیکن پھر بھی عقل نہیں آتی، تو عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو انڈین عوام سے بھی میری یہ بات ہوگی کہ آپ ان حکمرانوں کے جانسوں میں نہیں آیا کریں، یہ آپ کو ایسے ہی کسی دن یہ جو ان کا جنون ہے، ان کا جنگی جنون ہے، اس میں یہ آپ کو ہی کبھی نقصان پہنچوا دیں گے۔ آپ جو ہے ان کو سمجھائیں کہ اتنی بڑھ کے نہیں مارا کریں، اتنے
इतनी बातें नहीं किया करें। पाकिस्तानी जो हैं वो इतने कमज़ोर नहीं हैं, और हमारे अंदर उन्हीं इख्तलाफात कुछ भी हों, लेकिन हम अपने दुश्मन को कभी भी माफ़ नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पर बहुत मजबूत हैं। अब इस हवाले से इंडियंस के लिए मेरा यही पैगाम था। मेरे ख्याल है समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप आइंदा के लिए ऐसी बातें करते हुए सोचा करें। और आप तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास करवाते थे, लेकिन अभी तो आप अपनी बातों से बरमला इज़हार कर चुके हैं कि आप दहशतगर्द हैं। और ये तो हम कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपने कई ऐसी जमातों को और कई ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं उनको सपोर्ट किया है माली तौर पर, और ट्रेनिंग भी दी है। और ये मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि आपने सन 1971 में भी मुफ्ती बायनी को भी सपोर्ट किया और उनके लोगों को भी, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग्स दी। और ये तो आप करते आ रहे हो। आप बुज़दिल दुश्मन हो, इस वजह से आप ऐसी जो है ना हरकतें करते हो, पीठ के पीछे वार करते हो। बहादुरी तो आप में इतनी है कि आप सन 1965 में अपने टैंक, आप तो चाय पीने के लिए आए थे, आप तो चाय पीना चाह रहे थे, तो फिर अपने टैंक और अपने प्लेन्स छोड़ के आप भाग गए। आप इतने तो बुज़दिल हो, और वो आज तक हैं। वही तो कम अज़ कम ले जाओ आके। और 26 फरवरी का जो था वो भी आपका एक्चुअली वो भी मामला यहीं रह गया, वो भी आप अपना छोड़ गए। तो खैर इन सारी चीज़ों को हम लेके आगे चलते हैं। तो मामलात हो गए हमारे अपने सियासतदानों की तरफ कि आपने इलेक्शन से पहले आवाम से जो वादे किए, जो झूठ बोले, उन झूठ बोलने और वादों का क्या रिज़ल्ट आ रहा है। आप तो बिजली फ्री दे रहे थे, आवाम को गैस महंगी, बिजली महंगी, बेरोज़गारी, इतने मामलात आपके पास कोई इक़्तिसादी प्लान नज़र नहीं आता। आप मुल्क कर्ज़े लेते फिर रहे हैं। अभी भी आप दोस्त ममालिक से और IMF से और दीगर जगहों से आप कर्ज़े ले रहे हैं। तो इन कर्ज़ों से आप कैसे मुल्क चलाएंगे। किसान परेशान है, किसान के लिए आपके पास क्या पैकेज है, कुछ नहीं। इक़्तिसादी निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप मुल्क की जो इदारे हैं उनको आप निजकारी करते जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस वजह से तो हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप एक गीवर, एक बहादुर कौम को आपकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और आप इस कौम को आप चंद लोगों, चंद लुटेरे लोगों की वजह से, चंद लुटेरे सियासतदानों की वजह से इस मुल्क की गैरतमंद कौम को आप की वजह से बातें सुनना पड़ रही हैं। इस गैरतमंद कौम को आपने भिखारी जैसे अल्फाज सुनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भीख मांगना आपकी फितरत में है। आपने जो मामलात कर रखे हैं वो आपके मामलात ही हैं कि आपके पास कोई इक़्तिसादी प्लान है नहीं। आप जितने भी जमातें हैं, चाहे अपोजिशन है या हुक्मरान है या आपके इत्तेहादी हैं, आपके पास कोई मुल्क को चलाने का कोई निज़ाम नहीं है। ना आपके पास सन्नत के लिए कोई निज़ाम है, ना तिजारत के लिए कोई निज़ाम है, ना आपके पास ज़राअत के लिए कोई निज़ाम है। आपके पास इक़्तिसादी निज़ाम नहीं है, और आप कर भी नहीं सकते क्योंकि आप बिजनेस माइंडेड बंदे हो। आप आवाम से टैक्सेस और दीगर मामलात में अपनी अय्याशियाँ करते हो, बाहर से कर्जे लाते हो, उससे अय्याशियाँ करते हो, मुल्क को गिरवी रख दिया, मुल्क की कौम को गिरवी रख दिया। मेरी कौम से मेरी ये बात है कि आप इनके जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे। देखें बात यही हो रही है कि आप इनके पास लास्ट मौका है, और हम अपने दिफाई इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आवाम बहुत बर्दाश्त कर चुकी है। आप बराए मेहरबानी इन लोगों को ये आखिरी मौका है, और आप देखें अगर ये करते हैं तो ठीक है। अगर ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, कोई इक़्तिसादी प्लान ये वाज़े नहीं कर सकते और सिर्फ कर्ज़ों से मुल्क चलाते हैं, तो खुदारा हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके मिन्नत करते हैं कि ऐसे लोगों को कौम के ऊपर मुसल्लत ना होने दें। आपने हलफ लिया है, आपका हलफ है रियासत को बचाना। आप रियासत को बचाने की बजाय आप इन लोगों को अगर ढील देंगे, अगर इन लोगों को आप ऐसा वर्क करने देंगे कि कर्जे लो, कुछ खुद से ये पैदा करने के लिए इक़्तिसादी मसाइल जो हल करने की बजाय ये बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस तरह से कौम किसी को भी माफ़ नहीं करेगी। अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहे हैं, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिट जाता है। तो इस तरफ कौम को ना मजबूर किया जाए, कौम को ना लेकर आया जाए। हमारी आपसे गुजारिश है। गज़ा के मुसलमान इस टाइम बहुत तकलीफ़ में हैं। उम्मत मुसलमा के लिए हम क्या कर रहे हैं।
हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे इस तरफ से बड़ी ठंडी हवाएं आती हैं, तो क्या था, ये पाकिस्तान के लिए था। आज पूरे उम्मत मुसलमा में जितने ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटमी पावर हमारे पास है, हम मजबूत हैं, हम दिफाई एतबार से, तो हम मजबूर हो चुके हैं इन सियासतदानों की इन गलत पॉलिसीज़ की वजह से, कि जिसकी वजह से हमें इतने मामलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से मैं दिफाई तमाम इदारों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने उस हलफ को देखते हुए, जो हलफ आपने इस रियासत को बचाने के लिए उठाया है, आप देखें, सियासतदानों को ये लास्ट मौका दें। आप देखें, अगर ये डिलीवर कुछ कौम को कर सकते हैं, एक इक़्तिसादी प्लान, इक़्तिसादी प्लान इनके पास हैं और ये मजबूत कर सकते हैं मुल्क को ज़राअत में, सनत में, तिजारत में, तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो आप ऐसे पॉलिसी मेकर्स को बैठना पड़ेगा, फ्रंट पर आना पड़ेगा और ऐसी क़यादत को लाना पड़ेगा जो ये सब कर सकते हैं। और ये 3-3.5 महीने के अंदर हम आपको करके दिखाने के लिए तैयार हैं। आप देखें किस तरह मुल्क सिस्टम उसका बिल्कुल प्रॉपर होके चल सकता है। आप किस तरह इस मामलात को लेके इनके हाथ में देकर और आप चला रहे हैं कि जिससे कौम मकरूज हो गई है, कौम को गालियां पड़ रही हैं, पूरी दुनिया में भिखारी बना दिया गया है कौम को। तो ये तो इनकी चंद लोगों की अय्याशियों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो खुदारा हम थक चुके हैं, हमारी कौम थक चुकी है। जुल्म, ज़्यादती, घरों में लाशें उठाई जा रही हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, समझ से बाहर है क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। आप बराए मेहरबानी इन चीज़ों को देखें। खुदारा अपने उस हलफ को याद करें। मैं तमाम दिफाई इदारों से बार बार कह रहा हूँ कि जब आप हलफ उठाते हैं इस रियासत को बचाने के लिए, तो आप उस हलफ को देखें। सियासतदान जो भी है, जितना भी क्लोज हो, लेकिन कब्र अपनी है जिसके अंदर जाना है और अल्लाह को जवाब देना है। और जो इस रियासत के अगेंस्ट होगा, चाहे वो कोई भी इंसान है, जितना भी पावरफुल है, जब कब्र में जाएगा, इसी पाक धरती की जब गोद में जाएगा, तो फिर कब्र कभी उसे माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातिमुल नबीन रहमतुल्लिल आलमीन की पसंदीदा जगह है। और ये 2 रियासतें जो हैं, एक मदीना और एक पाकिस्तान, ये ला इलाहा की बुनियाद पर बनी है। तो लिहाजा मेरी आपसे हर एक मुसलमान बहन भाई से रिक्वेस्ट है, तमाम पाकिस्तानी अपनी कौम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अब इसी बात पे आ जाएं। जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। रोज़ हमें एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, मीडिया पे कोई चीज़ दिखाई, ये किया वो किया। इन मामलात में कौम को उलझा के इतना उलझा दिया गया कि बेरोज़गारी और महंगाई से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये मामलात अब कंट्रोल होने चाहिए, खुदारा कंट्रोल होने चाहिए। ये बाहर से कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलता। कब तक कर्ज़ों से मुल्क चलेगा? या मुल्क के वसाइल ऐसे पैदा किए जाएं कि मुल्क खुशहाल हो, कर्ज़े उतारे जाएं। भाई कौम के पास जो कुछ था वो आप लूट चुके हो मुख्तलिफ तरीक़ों से। कौम के पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। बाहर से कर्ज़े, मुल्क के अंदर से आपने अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी के मामलात में उलझा के सब कुछ लूट लिया। खुदा के लिए रहम करो, इस कौम के ऊपर अब रहम करो, अवाम के ऊपर अब रहम करो, इस कौम के ऊपर रहम करो। अब इस मुल्क के अंदर जितने मादनियात हैं, जितने ज़राअत के हमारे हैं, जितने डैम्स बनाने हैं वो बनाओ, अपने मामलात देखो। ज़राअत में खुद कफील मुल्क को आपने किस हाल तक पहुंचा दिया। इंडिया ने डैम्स बना के हमारा पानी सब कुछ रोक लिया। आप तमाशाई बन के बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रही कि आप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। क्या मकसद है? वो लोग जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने ज़ाती मामलात को देखने के लिए, आज के अपने दौर को मजबूत करने के लिए और अपनी नस्लों का सोच रहे हैं, क्या आपको मरना नहीं है? क्या आपको अल्लाह को जवाब नहीं देना? ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क जो है, इसके मामलात का जवाब अल्लाह आपसे लेगा। इसीलिए बेहतर है कि अपनी आखिरत ख़राब नहीं करो और इस मुल्क के लिए सोचो। पाकिस्तान हमेशा के लिए था, है और हमेशा के लिए रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।